So now we are going to start with double column cash book. क्या करने लगे हैं अब हम? Double column. Now what is a double column cash book? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया. Double column cash book is a cash book wherein there are two columns of amount. पहले हम amount का एक column लिखते थे. Now we will write two columns. उन two columns के नाम हम ऐसे लिखेंगे. One will be for cash and other will be for बैंक. क्योंकि कुछ पेमेंट रिसीव होती है कैश में, कुछ बैंक के थ्रू. सिमिलरली ऑन क्रेडिट साइड आल्सो वी विल राइट इट लाइक सम अमाउंट विल बी पेड थ्रू कैश एंड सम थ्रू बैंक. तो टुगेदर वी विल मेक अ फॉर्मेट और इसी के अंदर से हम पेमेंट करते जाएंगे. रेस्ट ऑल द कॉलम्स विल रिमेन सेम. डेट, particulars. Now you got it. Why it is called as double column? क्योंकि अमाउंट के दो कॉलम है, कैश एक बैंक. डेट, particulars and ledger folio लिख लीजिए टैक्स. डेट, particular, ledger folio, cash bank balance. Here also ledger folio, date and particulars. ठीक है बेटे. Shall we start now? थोड़ा सा ध्यान से इसको समझ लेना. In case you find it difficult to complete it on the like vertical page, तो horizontally आप अपनी notebook पे ये format draw करके question कर सकते हो. Question number 5 we are going to start from the book. It is saying record the following transactions in a double column cash book and balance the book on 31st March को करके balancing figure निकालिए. Let's start. Please look here at the board side by side. 2020 year is given. Date is 1st March. On 1st March, they are saying cash in hand and cash at bank. Opening balances are given in the beginning of the year. Previous question में आपको बताया है कि carry down balance is to be taken as brought down. Here brought down balance is already given. तो क्या लिखेंगे? To balance brought down already given in the question. How much is the cash balance? 12,750. How much is the balance? Cash at bank 72,400. ठीक है बेटे? Clear? Please make a note here. In case question में लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट या बैंक का क्रेडिट बैलेंस, then बैंक का बैलेंस will come on this side. इस साइड भी आ सकते हैं ना बैंक ब्रॉड डाउन बैलेंस. तो अगर ओवरड्राफ्ट मींस इट इज अवर लायबिलिटी, तो इट विल कम हियर बाय बैलेंस ब्लॉक. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कैश इन एंड कैश एट बैंक, डायरेक्टली वी हैव रिटन. नेक्स्ट मार्च 4, ध्यान से सुनिए. रिसीव्ड फ्रॉम आशा कैश 1200 एंड चेक 3200. डन. Received from Asha. Stop making that format. You will not be able to understand later. I'm asking you to listen carefully. Received a check and cash from Asha. Then again we have to see कि check is being deposited or check is in hand only. Checks in hand पढ़ा ना हमने, तो check deposit हुआ कि नहीं हुआ? In the whole question there is no other information. It means it is being deposited. So we will write to Asha account. How much cash? Date लिख दीजिए कितनी है? 3rd March, 4th March. How much cash? 1200 and how much check? 3200. Okay. And what about the discount? Discount is also there. 400 is the amount of discount. Earlier we used to prepare 3 column cash book जिसमें discount का भी column होता है. That is not in the syllabus now. So discount we have to ignore. वो discount will go to journal proper. कहीं तो जाएगा वो भी. तो उसकी journal proper में आ जाएगी entry. Discount allowed account debited to Asha. Discount allowed खर्चा है हमारा. Discount allowed account debited to
आशा अकाउंट जनरल प्रॉपर में, here it will only cash and bank की entry. Done. Entry number 7 March paid salary to staff by check. March 7 है, यहाँ लिख दो 7 March. How we have paid? What we have paid by salary. सैलरी पे करी ना, कैश में कि चेक में? चेक कहां से जाएगा? हाउ मच? 25,600 rupees. So this is the amount we have to write. Done. Next, can I withdraw cash from bank for office use? Please listen again now very carefully. अब इस एंट्री की पहले मुझे जर्नल एंट्री बताओ. विड्रॉन ऑफ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज. एंट्री बताएगा कोई भी बच्चा? यस. कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. अगर एंट्री होती कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक तो एंट्री क्या होती मोहित? वेरी गुड. नाउ प्लीज लिसन केयरफुली. इन केस कैश इज डिपॉजिटेड इन बैंक और कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो कैश और बैंक दोनों ही है, दोनों हमारे पास ही है. कैश भी यही है, बैंक भी यही है, तो एक ही बुक के अंदर पैसे आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं एक ही एंट्री से. दिस टाइप ऑफ एंट्री इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रा एंट्री. व्हाट डू वी कॉल इट? व्हाट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री? We are not receiving money from outside, we are not making payment outside. Inside the organization, money is traveling from cash to bank or bank to cash. It is called as contra entry. Very important entry to understand and to pass. Now money बैंक से निकाल लो तो पैसे जाते हैं यहाँ से, यहाँ से जाएंगे पैसे, यहाँ पे पेमेंट होती है, तो बैंक से कितने पैसे चले गए? 21,900 बैंक से निकाले और चले कहाँ गए? रिसीव किसको हुए हैं? कैश में. तो मनी हैव बीन रिसीव्ड इन कैश, कैश में रिसिप्ट हुई और बैंक से पे हुई. सो हाउ वी विल केटर टू दिस प्रॉब्लम नाउ? व्हाट वी कैन डू नाउ? और बैटरी लो होगी, चार्जर नहीं है, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम. अब बेटे तुम्हारा क्वेश्चन अगर बंद हो गया तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, चार्जर ही नहीं है. एक काम करोगे तुम, दौड़ के जाओगे ना वहां नीचे जहां हमारी पहले क्लास थी ना, वहां एक्सटेंशन फाइल पड़ी उठा दो. अच्छा जी, ये समझ आ गया आपको? बैंक में से पैसे निकल गए 21,900 और कैश में पैसे आ गए. नाम किसका लिखना है? जब बैंक में है तो बैंक का नाम तो नहीं आ सकता, क्या नाम आएगा? बाय कैश. और ब्रैकेट में यहाँ लेजर फोलियो में सी लिख दो कि कहीं से नहीं आया, सी है, कॉन्ट्रा एंट्री है ये. और जब कैश में पैसा आया तो नाम बैंक का लिख दो टू बैंक अकाउंट और सी लिख दो, मतलब इट इज कॉन्ट्रा एंट्री. नो पेज नंबर ऑफ लेजर इज टू बी टेकन केयर. डेट क्या है हमारी? 9th of March. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यही एंट्री सबको गलती लगती है, बच्चे गलत कर देते हैं, बाकी सारा इजी होगा. कॉन्ट्रा एंट्री इज द मोस्ट ट्रिकी एंड कंफ्यूजिंग वन. डन. डन. नेक्स्ट एंट्री देखिए फिर. इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन बैंक बैलेंस. बैंक ने हमें पैसा दिया, बैंक बैलेंस तो आया होगा पैसा. बैंक हमें कैश तो नहीं देगा, कभी कैश तो नहीं देगा. इंटरेस्ट हमारे बैंक अकाउंट में आ जाते हैं पैसे, आता है ना मैसेज कि इतना अमाउंट आपको इंटरेस्ट मिला. So we will write it to interest account. Date is 12th March. Next entry is 16th March purchased furniture in cash. यहाँ पे आ जाएगी 16th March buy furniture. How much? 16,500. Done. Next entry. Paid to Mohan and company by check. 10,900 पे करती है, यहाँ से पेमेंट होती है 10,900 by किसको पे किया? मोहन एंड कंपनी. Date is
21st March. Clear बेटे? Next is proprietor withdrew from office cash for his personal use. Personal use के लिए cash निकालना है, so it will be just a second बेटे. हाँ जी. Okay, you want to understand contra entry once again. Contra entry में बेटे क्या हुआ? We have withdrawn money from bank for office use. तो money is going out of bank, तो यहाँ से पैसे जाते हैं, तो बैंक में 21,900 लिख दिए और आए कहाँ पैसे कैश में आ गए 21,900. ठीक है. Name we have to write of the opposite party. तो कैश में लिखा है तो बैंक का नाम, बैंक में लिखा है तो कैश का नाम, और लेजर फोलियो में सी लिख दिया. सी मींस काउंटर एंट्री बिकॉज दिस एंट्री इज नॉट गोइंग टू पास इन द लेजर. ये ऑलरेडी इसी में एडजस्ट हुई ना आपस में, और इसका लेजर बनना नहीं है तो इसको ऐसे. नाउ इन दिस नेक्स्ट एंट्री मनी इज अगेन विथड्रॉन. मनी इज विथड्रॉन इन कैश बट फॉर पर्सनल यूज. तो बिजनेस में नहीं रह रही, सो सिंपल नो काउंटर एंट्री. बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट कैश में से पैसे जाएंगे हाउ मच? 11,600 March 24th March. क्लियर है बेटे? देन सोल्ड गुड्स टू मनोज फॉर कैश. कैश आया होगा 14,800, यहाँ लिख दो 14,800. तो मनोज तो नहीं लिखना अब हमने, जब कैश आ जाता है तो हम सिंपल सेल्स लिखते हैं. ओके. डेट इज March 29. लास्ट एंट्री बेटे डिपॉजिटेड ऑफिस कैश इन बैंक 21,200. अगेन अ कॉन्ट्रा एंट्री. बैंक में पैसे अपने डिपॉजिट कर दिए. प्लीज लिसन केयरफुली अगेन. नाउ मनी इज बीइंग डिपॉजिटेड इन बैंक. तो कैश जाएगा और बैंक में पैसे आएंगे. फ्रॉम कैश द मनी विल गो आउट. हाउ मच? 21,200 will go out from cash and deposited in bank 21,200. Is it clear? लेजर फोलियो में सीसी कॉन्ट्रैक्ट लिख दो. कैश में अमाउंट लिखा है तो बाय बैंक, और बैंक में अमाउंट यहाँ लिखा है तो टू कैश अकाउंट. समझ गए? क्लियर है बेटे? डेट इज 31st March. Yes. Now this is the whole question. What you are supposed to do at the end? Totaling करनी है बेटे आपको, बट सेपरेट करेंगे दोनों को. कैश का पहले करें, टोटल ऑफ दिस साइड ऑफ कैश and total of other side of cash, and then we will calculate what is the amount of balance in cash. कैश का पहले फिर बाद में बैंक. One by one we will do. Calculate and let me know how much is the balance for this question. करिए थोड़ा फास्ट. $50,650 आया. It is 50,650 आ गया एक साइड का टोटल, और दूसरी साइड का करें कैश का तो ये तो कम ही आ गया.
39,300 आया, तो माइनस कर दो 5650 में से 39,300, तो ये आ गया 350 और यहाँ आ गया 11,350, इतना ही है। सॉरी, अच्छा 49 है, 49, तो फिर 1350 आ गया, तो 1350 इज द आंसर फॉर कैश बैलेंस। उसको हम लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी, कैरी डाउन, डेट लिख दी 31 मार्च। अब बैंक का भी सेम करेंगे, पहले बैंक का टोटल करो इस साइड का, फिर उस साइड का माइनस करेंगे उन सबको। आंसर देखिए सही आ रहा है, इस साइड का 98,000 है, ओके, on the other side it is less definitely. So how much is the balance? 20, 25, 26, 36, 36, 46, 46, 47, 47, 48,000. कितना है? 48,000. Sorry, हाँ 58,400 माइनस करो तो 39,600. 39,600 will be the आंसर। तो बस ऐसे सर्कल करके हमने आंसर्स इसके लिख दिए। ठीक है बेटे जी, बैलेंस कैरी डाउन इज डन, डेट इज क्लियर, डाउट आया कोई? दिस इज अगेन वेरी इजी। सो दिस इज योर टुडेज होमवर्क टू डू rest remaining 3 questions of simple cash book, double column cash book we have done today. Tomorrow again we will do some questions, ठीक है, and tomorrow I'll give you homework of double column cash book. Clear? That's all for today's class.